Hello students, today is our lecture number 3 on the chapter electricity. In lecture 1 and 2 we discussed the discovery of electricity, meaning of electricity, the kite experiment performed by Benjamin Franklin, the transfer of charge from one surface to another surface due to rubbing, the quantization of charge Q is equal to plus minus Ne, the definition of charge in which we say that charge is a property which develops on a body due to transfer of electrons from one surface to another surface. The unit of charge is Coulomb, SI unit, which is represented by capital C. The symbol of the charge is capital Q or small q. Then we discussed the type of charges. There are two categories of charges, positive and negative charges. Then we had a discussion on properties of charge. There are various properties of charge. Number one, charge can be transferred from one surface to another surface in the form of integral multiple. Only integral multiple of electrons or charge can be transferred from one surface to another surface. That is Q is equal to plus minus Ne. Q is equal to plus minus Ne. This charge can be transferred. No fractional value of charge can be transferred from one surface to another surface. Q is equal to plus minus Ne, where N is number of electrons, E is charge of an electron. In numerical value of E is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 Coulomb. Second, we discussed the like charges repel each other and the unlike charges attract each other. And in third property, we discussed the surface from which charges the surface which loses electrons get positively charged and surface which gains electron gets negatively charged. Then we discussed the question, what makes the electric charge to flow? Answer of this question is potential difference. Potential difference makes the electric charge to flow. To understand the concept of potential difference, we took various examples. First, we took an example of two water tanks placed at same level. There is no flow of water because of same pressure at two ends of the pipe through which these two tanks are connected. If we place one water tank at roof of the building and another water tank at ground, then we connect these two tanks with the help of a pipe. Then the tank which is placed at roof, tank which is placed at roof, then the end of the pipe which is connected to this tank placed at roof will have high pressure, whereas the end of the pipe which is connected to the tank placed at ground will have low pressure. So there is a difference of pressure of water. At one place it is high pressure and at another end of the pipe it is low. So there is a difference of water pressure. This pressure difference of water makes the water flow from one end to another end. Similarly, we took an example of blow of wind. You see a place which is very hot will have high temperature and the place which is cold will have low temperature. So the wind will blow from the place of high pressure to the place of low pressure. So because of temperature difference there is a difference of pressure. Because of difference of pressure the wind will blow from one place to another place, from the place of high pressure to the place of low pressure. So in this case also this is the pressure which makes the wind flow from one place to another place. In other examples we discussed the transfer of heat. The heat is transferred from the surface of higher temperature to the surface of lower temperature because of difference of temperature. So again you see there is a difference of temperature. This difference of temperature makes the heat transferred from one surface to another surface. So it is known as pressure of temperature, difference of pressure of temperature. Similarly, if the temperature of two places are same, then there is no transfer of heat. Using these examples, now we can define that in metallic wire charge will flow because of the difference of pressure of electricity.
or we can say electricity pressure. What is the meaning of this electricity? We also discussed it. You see, we have one metallic wire. At one end of the wire there is high pressure of electricity, or we can say electrical energy, and at another end of the wire there is low pressure of electricity, or we can say electrical energy. So there is a difference of pressure of electricity at two ends of the wire, therefore charge will flow. And if the two ends of a wire does not have any difference of pressure of electricity at its two ends, then charge does not flow. If both the ends of the wire have same pressure of electric energy or electricity, it means the charge in a metallic wire flow due to difference between electric pressure of electricity or electrical energy at two ends of the wire. This difference of electric pressure at two ends of the wire is nothing but known as electric potential difference. So the electric potential difference makes the charges flow through any metallic wire. Then we discussed various cases. We took one wire and a charge Q was assumed by us inside the wire, and we assumed that both the ends A and B of this wire are having same potential. Then there is no flow of the charge because both the ends of the wire are at same potential, so there is no difference of potential between two ends of the wire, so charge will not flow. In case number 2, you see, we have assumed, or we have considered that at end A there is high potential and at end B there is low potential, and negative charge is assumed inside the wire. So this negative charge will always move from low potential end to high potential end. Low potential end to high potential end. Negative charge flows from low potential end to high potential end. This charge is flowing, charge is moving because of difference of potential. You see, this end is at high potential, so and B is at low potential, so there is a difference of potential between end A and end B, therefore this charge will flow. In case 3rd, we considered the same case. At end A there is high potential, at end B of the wire there is low potential, there is a difference of potential between two ends of the wire, and we assumed that positive charge is placed here inside the wire. So this positive charge will now flow from high potential end to low potential end. So you have to keep this thing in mind, that positive charge will flow from high potential end to low potential end, whereas negative charge will flow from low potential end to high potential end. So, and then we defined electric potential difference. Electric potential difference is the potential difference between the potentials at two ends of a wire. किसी वायर के दो एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point against the field of any other charge. This is written as Bp minus Vr. If we are moving this unit charge means 1 coulomb amount of charge is moved from point P to point R. At point P the potential is Bp and at point R potential is Vr. So the potential difference would be Bp minus Vr. In moving this unit coulomb charge, 1 coulomb charge from point P to R, the difference of the potential is known as potential difference, which is equal to work done in moving this unit charge from P to R upon charge. So work done in moving a unit charge from P to R from one point to another point is known as potential difference, or it is denoted by Bp minus Vr, may be written as delta V, or V is equal to this. So finally V is equal to W upon Q. W is work which is measured in joule, Q is charge which is measured in coulomb, so unit of potential would be joule upon coulomb or joule per coulomb. SI unit of this potential difference is volt, and this volt is given, this unit volt is given to this potential because of the great scientist Alexander Volta, who defined the concept of potential difference. So उन्हीं के सम्मान में इसका SI यूनिट, पोटेंशियल का SI यूनिट वोल्ट लिखा जाता है. Then we discuss the concept of electric potential. Electric potential is the amount of work done in carrying or moving a unit charge from infinity to any point against the field of any other charge. It is V is equal to W upon Q, and it will have same unit as that of potential difference.
Unit of electric potential we discussed, V is equal volt or joule per coulomb or joule per coulomb. This in this way we can write unit of electric potential. Then we defined 1 volt. 1 volt is the amount of work done, which is 1 joule in moving 1 coulomb charge from infinity to any point. So 1 volt may be defined as the potential which is there if 1 joule is work. If 1 joule work is being done in moving a 1 coulomb charge from infinity to any point, then potential difference will be 1 volt. यदि किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को किसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, और यानी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने में यदि 1 जूल वर्क करना पड़े तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहलाएगा। तो यहाँ तक इस डिस्कशन से हमने जाना कि जो चार्ज का फ्लो है वो किसकी वजह से हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कॉज हो गया, और चार्ज के फ्लो का प्रभाव क्या है, चार्ज जब फ्लो होता है वायर से तो उसका प्रभाव क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट को उसके बाद में हमने डिफाइन किया, इट इज डिनोटेड बाय आइदर कैपिटल आई और स्मॉल आई। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट को हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, और Q यहाँ पर चार्ज है, T यहाँ पर टाइम है, कूलम पर सेकेंड ये इसका यूनिट हो जाएगा, क्योंकि Q कूलम में है और टाइम सेकेंड में, कूलम पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा, जिसको हम दूसरा यूनिट भी कहते हैं एम्पियर, और या फिर लिखते हैं कैपिटल ए। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने करंट के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये बात हमने की थी। Q को हमने एन के बराबर लिखा, तो करंट का फॉर्मूला एन अपॉन टी भी लिख दिया था हमने, एन अपॉन टी भी लिख दिया था। अब इसके बाद में आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि कैसे करंट डेवलप होता है किसी वायर में, उसकी बात हम करेंगे। देखिए ये वायर था, ये एक वायर था, करंट कैसे डेवलप हुआ बेटा उसकी बात मैं करना चाह रहा हूँ आज आपसे। ये हमारा इनकम्प्लीट रह गया था करंट का कॉन्सेप्ट। तो ये एक कॉपर वायर मान लीजिए, मेटेलिक वायर, कॉपर वायर है। ठीक है, कॉपर वायर, इसमें कौन कौन होते हैं बेटा, एक तो होता है कॉपर एटम। कौन होता है, कॉपर एटम। बहुत सारे कॉपर एटम होते हैं कॉपर वायर में, एक ही कॉपर एटम नहीं होता। और कौन होता है, कॉपर आयंस होते हैं, कॉपर आयंस, जिनको कॉपर आयंस में हम Cu++, Cu+2 कहेंगे। और कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखिए कॉपर एटम से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 2 पॉजिटिव वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा। ये इसकी बैलेंसी कहलाती है कॉपर की। तो 2 पॉजिटिव चार्ज इसके आगे। तो जब कॉपर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गए, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब कॉपर एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, किसकी वजह से निकलते हैं बेटा, कॉपर एटम, ये जो वायर है ये सराउंडिंग से हीट गेन करेगा। जब ये वायर सराउंडिंग से हीट गेन करता है तो इसके जो कॉपर एटम्स हैं उनमें आपस में कॉलिजन्स होती हैं, और जो कॉपर एटम है जिसमें कॉलिजन्स होंगी तो उस हीट के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर एटम के, देखिए ऐसे होता है। मान लीजिए ये एक कॉपर एटम है, ये मान लेता हूँ एक कॉपर एटम है। बहुत सारे कॉपर एटम इस वायर के अंदर हो सकते हैं। कॉपर एटम में यहाँ होता है न्यूक्लियस, जिसमें होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इस तरीके से इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और ये जो डॉटेड सर्किल में बना रहा हूँ, ये डॉटेड सर्किल होते हैं ऑर्बिट्स। इनको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसको, के सेल, इसको एल एम एन, ऐसे सेल्स होते हैं इसमें। तो जो सबसे बाहर का सेल होता है, ये वाला सेल जो कि इसको एटम की सरकमफ्रेंस के पास होता है सॉरी, जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है इसे हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं। जो सबसे बाहर होता है इसे हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, और इस आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये जो मान लीजिए ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो कौन से इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। तो जैसे ही कॉपर एटम को हीट मिलेगी, ये कॉपर वायर था, ये कॉपर वायर है और इसमें बहुत सारे कॉपर एटम हैं। तो जब ये कॉपर वायर सराउंडिंग से हीट गेन करेगा तो ये जो आउटर ऑर्बिट के फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये अपनी जगह छोड़ देंगे
और ये कॉपर एटम बदल जाएगा किसमें, ये कॉपर एटम बदल जाएगा कॉपर आयन में। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसकी जो बैलेंसी आएगी +2 आ जाएगी। तो ये कॉपर एटम किस में बदल गया बेटा, कॉपर एटम बदल गया कॉपर आयन में। ये कॉपर एटम कॉपर आयन में बदल गया। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कॉपर वायर के अंदर किस तरीके से मूव करेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कोई तो ऐसे जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, यानी जिगजैग मोशन करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा जिगजैग मोशन करेंगे। कैसी मोशन करेंगे, जिगजैग मोशन करेंगे, जिगजैग। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग मोशन करेंगे तो आपस में क्या करेंगे, कॉलिजन्स करेंगे, टकराएंगे। और जब ये आपस में टकराएंगे तो आप जानते हो जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चे तुरंत बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो आपस में टक्कर भी हो जाती है। तो जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से टकराता है तो एक बच्चे की तो स्पीड कम हो जाती है और दूसरे बच्चे की बढ़ जाती है। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराएंगे तो एक की स्पीड कम हो जाएगी और दूसरे की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऑन एन एवरेज यदि हम एवरेज वेलोसिटी निकालें इलेक्ट्रॉन्स का इस केस में, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो 0 होता है। ठीक है। अब अभी तक इस वायर में कोई करंट डेवलप नहीं होगा। यदि आप इस वायर में करंट डेवलप करना चाहते हैं तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हमें एक निश्चित दिशा में मूव करवाना पड़ेगा। तो निश्चित दिशा में मूव करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ भाई, जैसे कि क्लास होती है ना बेटा, जब क्लास में आप बैठे होते हैं और टीचर नहीं होता है, जब टीचर नहीं होता है तो बच्चे बहुत सारा शोर कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर चौक भी फेंकते हैं, पता नहीं क्या क्या शैतानियाँ करते हैं। तो जब टीचर नहीं होता है तो क्लास में इनडिसिप्लिन होता है। लेकिन जैसे ही टीचर आता है वैसे ही बच्चे रोल मॉडल बन जाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है। हालांकि बच्चे कुछ नहीं करते, वो तो बचपना है जो सब लोग करते हैं। ठीक है। तो जैसे ही टीचर आया सब बच्चे शांत होकर के अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ठीक है। तो वो जो बच्चे शांत हुए क्लास के, वो किसकी वजह से हुए, ड्यू टू टीचर की वजह से, कि टीचर आ गए हैं। टीचर का डर होता है, भय होता है कि टीचर हमें डांटेंगे। टीचर के प्रति बच्चों के मन में सम्मान भी होता है कि हमारे टीचर आ गए हैं, अब हमें शांति से बैठना चाहिए। ठीक है। तो टीचर की वजह से वो बच्चे शांत बैठ गए। तो शांत बैठ गए और जैसे टीचर ने कहा कि यहाँ से लाइन बना के बाहर जाना है, टीचर ने जैसे कहा कि यहाँ से लाइन बना के आपको बाहर ग्राउंड में इस जगह पहुँचना है, तो सारे बच्चे इन लाइन बड़े अनुशासित तरीके से लाइन में आगे चले जाएंगे। जैसे कि देखिए सुबह असेंबली होती है, तो जब तक आप हॉस्टल से जब स्कूल आते हो, हॉस्टल यदि रेजिडेंशियल स्कूल है तो हॉस्टल से स्कूल आओगे, और यदि डे स्कूल है तो अपने घर से आओगे। तो जब बच्चे स्कूल आते हैं सुबह सुबह के टाइम बिफोर असेंबली, तो वो पूरे ग्राउंड में फैले हुए होते हैं, जिगजैग डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही असेंबली की बेल बजती है, असेंबली की बेल बजते ही या ड्रम बीट होता है असेंबली का, तो तुरंत जो है सभी बच्चे जो है उनके दिमाग में आ जाता है कि चलिए अब असेंबली में जाना है और लाइन अप होना है, क्लास वाइज या हाउस वाइज लाइन अप होना है। तो वो बड़े डिसिप्लिन तरीके से लाइन अप हो जाते हैं। तो जो डिसिप्लिन आया वहाँ पर बच्चों में, असेंबली स्टार्ट होने के जो घंटी लगी, उस घंटी के बजने पर जो डिसिप्लिन आया वो घंटी के बजने से आया। ठीक है। उन्होंने सोच लिया कि हाँ घंटी बज गई है, अब जो है ग्राउंड में हमारे पीटी सर आ गए होंगे, या हमारे प्रिंसिपल सर आ गए होंगे, या हमारे ये टीचर आ गए होंगे, वो टीचर आ गए होंगे, चलिए अब हमें डिसिप्लिन में रहना है। तो वो डिसिप्लिन भी कहीं ना कहीं टीचर की वजह से ही आया। तो वैसे ही इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन जिगजैग मूव कर रहे थे बेटा, अब मैं इस वायर को क्या कर देता हूँ, इस वायर में देखिए इलेक्ट्रॉन जिगजैग मूव कर रहे थे, आपस में कॉलिजन हो रही थी। अब मैं इस वायर को जोड़ देता हूँ एक बैटरी से। किससे जोड़ देता हूँ बेटा, एक बैटरी से। ये लीजिए मैं एक बैटरी से इसको जोड़ देता हूँ। ये बैटरी का होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर होता है हाई पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल का वाला टर्मिनल होता है, हाई पोटेंशियल, सॉरी बेटा। ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है और इस पर पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होता है, तो ये हाई पोटेंशियल टर्मिनल हो गया। और ये नेगेटिव टर्मिनल जो छोटा लाइन है, ये लो पोटेंशियल टर्मिनल हो गया। कैसा पोटेंशियल होता है इस पर, लो पोटेंशियल। तो जैसे ही मैं बैटरी से, देखिए ये एंड वायर का मैंने इस नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, तो ये नेगेटिव से जोड़ा तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, यानी ये वायर का ये एंड
ये किस पर होगा, लो पोटेंशियल एंड पर आ जाएगा। किस पर आ जाएगा, लो पोटेंशियल एंड पर आएगा। और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये एंड आपने वायर के पॉजिटिव से जोड़ दिया तो यहाँ आ जाएगा हाई पोटेंशियल। अब देखना वायर के दोनों सिरों पर क्या आ गया, वायर के दोनों सिरों पर एक पर आ गया हाई पोटेंशियल और एक पर आ गया लो पोटेंशियल। तो अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं। अब नेगेटिव चार्ज मैंने आपको बताया था कहाँ से कहाँ मूव करता है, लो पोटेंशियल एंड टू हाई पोटेंशियल एंड। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरीके से इस तरफ चले जाएंगे। हो सकता है एक आध इलेक्ट्रॉन जो है इधर भी जाए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जब आप असेंबली में जाते हो तो सारे बच्चे जो है एकदम लाइन अप हो जाते हैं, कुछ बच्चे इधर उधर भी होते हैं, ठीक है। लेकिन सभी का डायरेक्शन जो मूवमेंट का होगा वो किस तरफ होगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल एंड की तरफ ये नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का क्या हो गया बेटा, फिक्स डायरेक्शन हो गया, निश्चित दिशा हो गई। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण इस वायर में, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं कि ये एक निश्चित दिशा में मूव कर रहे हैं। इस वजह से इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ जा रहा है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ, जैसे कि मैंने एरो बनाया है, इस तरफ इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाता है, जिस इलेक्ट्रिक करंट को हम कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मैंने आपको पहले पढ़ाते समय बताया था बेटा कि जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस समय केवल पॉजिटिव चार्ज के बारे में नॉलेज थी। तो उस समय जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन था वही करंट का डायरेक्शन माना जाता था। तो यहाँ पर भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे जाएगा, इस तरफ नेगेटिव जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन है वही हम करंट का फ्लो का डायरेक्शन मानते हैं, जिसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बहते हैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे मैं पेंसिल को मूव कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन हो गया, और इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में हो गया कन्वेंशनल करंट। और इसी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को हम सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन मानते हैं। तो इस तरीके से करंट इसमें डेवलप हो गया। किसने डेवलप किया, ये जो डिसिप्लिन डेवलप हुआ ये इस बैटरी की वजह से हुआ। बैटरी ने यहाँ पर क्या किया होगा बेटा, बैटरी ने इस वायर के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दिया। क्या पैदा कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दिया, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस वायर पर क्या डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करते हैं उस डायरेक्शन में जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट है। यानी इलेक्ट्रॉन्स देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैं 12th में आपको पढ़ाऊंगा, अभी आप जस्ट उतना ध्यान रखिए जितना मैं बता रहा हूँ। F = Q × E, ये फोर्स एक्सपीरियंस होता है इलेक्ट्रॉन्स को, किसी चार्ज Q को जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। यदि Q एक इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, यानी ये F क्या है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स, और ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट करेगा। लेकिन यदि चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा बेटा, जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा +E × E आएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो एक्सपीरियंस किया गया फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। किसकी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ पर बताई। हालांकि ये अपर लेवल का कॉन्सेप्ट है, आप तो इतना ध्यान रख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल एंड से लो पोटेंशियल एंड पर जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है वो लो पोटेंशियल एंड से हाई पोटेंशियल एंड पर जाते हैं। और इस वजह से जब ये नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में फ्लो करना शुरू कर देते हैं तो सर्किट में डेवलप हो जाता है क्या, करंट। और ये जो करंट डेवलप हुआ इसे हम कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कहते हैं। ये डायरेक्शन जो आ रहा है इस तरीके से ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, ठीक है।
तो ये सब जो मूवमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन्स का एक निश्चित दिशा में, वो किसने किया? इस बैटरी ने किया। ये डिसिप्लिन कौन पैदा किया? बैटरी ने। तो इस बैटरी ने वायर के दोनों सिरों के बीच क्या डेवलप किया बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया कॉज। किसका कॉज हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों सिरों के बीच में, इसके कारण चार्ज का फ्लो हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, और इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज के फ्लो के कारण सर्किट में करंट डेवलप हो गया। तो करंट क्या हुआ बेटा? इफेक्ट हुआ। करंट क्या हुआ? करंट तो हो गया आपका इफेक्ट, करंट तो इफेक्ट हुआ, ठीक है। और जो चार्ज का फ्लो है, चार्ज फ्लो ये किसके कारण है? चार्ज फ्लो किसकी वजह से हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? फिर कॉज कहलाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज का फ्लो हुआ, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कॉज हुआ, और करंट क्या हुआ बेटा? इफेक्ट हुआ। चार्ज के फ्लो के कारण क्या डेवलप हुआ? करंट डेवलप हुआ। तो चार्ज के फ्लो के कारण जो करंट डेवलप हो रहा है, ये करंट तो हो गया प्रभाव, और चार्ज फ्लो किसके कारण है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कॉज, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से डेवलप होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट Q अपॉन T के बराबर रेशो के बराबर होता है। Q और T के रेशो के बराबर होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? चार्ज अपॉन टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको बताया कि एम्पियर इज एसआई यूनिट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो उसी एम्पियर की मैं बात कर लेता हूं। यदि आपसे कहा जाए कि 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, तो यदि मैं कहता हूं इफ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इस फॉर्मूले में चलो इसको बाद में लिखेंगे, पहले ये लिखना होता है इसमें I इज इक्वल टू Q अपॉन T। और यदि इसमें मैं कह देता हूं कि इफ टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम, देन करंट क्या हो जाएगा बेटा? 1 एम्पियर हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा उस केस में? 1 एम्पियर हो जाएगा। कब? जब टाइम 1 सेकेंड हो और चार्ज 1 कूलम हो। यानी 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, कितने टाइम में? 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज का यदि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो जाता है, तो उस केस में कितना करंट डेवलप होगा? 1 एम्पियर करंट। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम। कैसे डिफाइन करें? लिख लें। So 1 ampere may be defined as, so 1 ampere may be defined as, कैसे डिफाइन होगा 1 एम्पियर? may be defined as कैसे? if 1 coulomb amount of charge flows in 1 second, कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड ऑफ टाइम में। if 1 coulomb amount of charge flows in 1 second, then current will be 1 एम्पियर। तो करंट क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। ये डेफिनेशन हो गया बेटा, ध्यान रखना। इफ 1 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, तो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। ये डेफिनेशन है 1 एम्पियर का, जो आपको पता होना चाहिए। याद रहेगा, 1 एम्पियर का डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। अब एम्पियर का देखिए कई बार आ जाता है, और छोटे छोटे यूनिट आ जाते हैं, इनको भी मैं बता देता हूँ। ये होता है माइक्रो एम्पियर। इसको क्या कहते हैं बेटा? 1, ये म्यू जो शब्द लगाया सिंबल है, इसको कहते हैं माइक्रो। इसको क्या कहते हैं? माइक्रो। और ए का मतलब एम्पियर। ए का मतलब क्या होता है? एम्पियर। और 1 माइक्रो का मतलब होता है इतना, 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। एम्पियर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, यानी 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। 10⁻⁻6 एम्पियर होता है 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब। अब ऐसे ही कहे कोई एम ए, ये स्मॉल एम है, और स्मॉल एम को, इसको मैं क्या कहता हूँ? स्मॉल एम को 1 मिली एम्पियर,
1 मिली एम्पियर, और 1 मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर का मतलब इतना होता है। माइक्रो का मतलब मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसे ही होता है 1 नैनो एम्पियर भी हो सकता है। स्मॉल n का मतलब नैनो एम्पियर, ऐसे भी हो सकता है। और नैनो का मतलब क्या होता है 10⁻⁹ एम्पियर। ठीक है, नैनो 9 से नैनो 9, ऐसे याद रखना। मिली 3, माइक्रो 6, ये याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो ये और स्मॉल यूनिट्स हो गई किसकी, करंट की। अब इसके बाद में जो आपको समझना है वो कुछ सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, जो कि भाई हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंबल्स ऑफ सम commonly used components in सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में कुछ कॉमन सिंबल्स यूज किए जाते हैं। कंपोनेंट मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कंपोनेंट का मतलब होता है डिवाइस, जैसे बल्ब हो गया, जैसे रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, डिवाइस रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, बैटरी है, सेल है, वायर है, ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहलाते हैं। तो इन सर्किट डायग्राम क्या होता है, जिसमें डिफरेंट, एक ऐसा सर्किट जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपस में जुड़े होते हैं, वो सर्किट डायग्राम होता है। आगे मैं डिफाइन करूंगा सर्किट डायग्राम को। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि इलेक्ट्रिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव और बड़ी लाइन पॉजिटिव होती है। छोटी लाइन नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल, बड़ी लाइन पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल है तो बड़ा बना दिया लाइन को, ये लो पोटेंशियल है तो छोटा बना दिया। इसे कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। अब है बैटरी, दूसरा क्या है, बैटरी जिससे हम और क्या कहते हैं, दूसरा नाम देते हैं बैटरी को कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब एक से ज्यादा सेल्स को आपस में जोड़ दिया जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, एक से ज्यादा सेल्स को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे हम बैटरी कहते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए 3 सेल को आपस में जोड़ा, ये 3 सेल है बेटा। कैसे जोड़ा, इस तरीके से सीरीज में जोड़ा। सीरीज में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। ये पहले सेल का पॉजिटिव, ये दूसरे सेल का नेगेटिव, सॉरी पहले सेल का ये पॉजिटिव और ये पहले सेल का नेगेटिव। ये पहले सेल का पॉजिटिव, ये दूसरे सेल का पॉजिटिव और ये दूसरे सेल का नेगेटिव। ये तीसरे सेल का पॉजिटिव और ये तीसरे सेल का नेगेटिव। तो देखिए, पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से, और दूसरे सेल का नेगेटिव तीसरे सेल के पॉजिटिव से। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है बेटा, इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं इसे, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये जो 3 सेल हैं, 3 सेल आपस में जोड़ दिए, इस तरीके से जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया बेटा, ये 3 सेल का बैटरी बन गया। अब इसे क्या कहेंगे, हम बैटरी कहेंगे। सेल तो ये सिंगल बैटरी है। आपने टॉर्च देखा है, टॉर्च में आप एक से ज्यादा ही सेल डालते हो ना, तो एक से ज्यादा सेल डालते हो, एक सेल है तो वो सेल कहलाएगा। एक से ज्यादा सेल आपस में सीरीज में जोड़ दिए, ऐसे ही तो डालते हो कि पॉजिटिव फिर नेगेटिव से पॉजिटिव टच होना चाहिए, सेल का बना रहता है ना सेल पर पॉजिटिव नेगेटिव। तो उस तरीके से, इस तरीके से यदि हम डिफरेंट सेल्स को आपस में सीरीज में जोड़ दें तो वो कहलाती है बैटरी। ये बैटरी का सिंबल है। किसका सिंबल है, बैटरी का। एक होता है 1 वे की बेटा, जिसे हम प्लग की भी कहते हैं। प्लग की या जिसे हम स्विच भी कहते हैं, स्विच। ठीक है, प्लग की कहो या स्विच कहो। और कौन सा स्विच, ओपन कंडीशन में स्विच बना रहा हूं मैं, ओपन स्विच की बात कर रहा हूं। तो यदि ऐसे सर्किट में कहीं आप देख लो इस तरीके से, तो ये ओपन स्विच होता है बेटा। क्या होता है, ये ओपन स्विच होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ओपन स्विच। और एक होता है
प्लग की, यही प्लग की यदि स्विच क्लोज है तो कैसे बनाई जाएगी? स्विच कैसा हो? क्लोज्ड हो। ठीक है, स्विच यदि क्लोज्ड है की का, तो ये इस तरीके से ब्रैकेट के बीच में डॉट बना होगा बेटा। यदि डॉट बना है ब्रैकेट के बीच में तो वो क्लोज स्विच कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? क्लोज स्विच। अब ऐसे ही ए वायर जॉइंट, दो वायर हैं आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? तो एक ये वायर है मान लीजिए, और एक वायर इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे आपने रिप्रेजेंट किया है तो ये वायर जॉइंट कहलाता है। एक वायर तो ये गया और दूसरा वायर इधर से आया, तो ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब ये जुड़ा हुआ है। या तो ऐसे बना हुआ है या फिर ऐसे है सिंपली, तो ये जुड़े हुए हैं आपस में दोनों वायर। ठीक है, एक वायर मान लीजिए पी क्यू है और दूसरा वायर ए बी है। ठीक है, तो ये ए बी वायर है, ठीक है, ये पी क्यू है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करें या इस तरीके से, तो ये जुड़े हुए हैं, वायर जॉइंट कहलाता है। ये वाला पॉइंट जो है जॉइंट कहलाता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला जॉइंट कहलाता है। अब एक दो वायर्स, यदि वायर्स को आपस में विदाउट क्रॉस करना है विदाउट ज्वाइनिंग, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, बिना जोड़े वायर्स को क्रॉस करना है, तो यहाँ तो क्रॉस किया वायर को जोड़ करके, जुड़ा हुआ है ना वायर आपस में। और यदि ये एक वायर है और इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया है दूसरे वायर को, ये ए बी एक वायर है और ये पी क्यू एक वायर है, तो यदि इस तरीके से घुमा के बनाया हुआ है, इसका मतलब ए बी वायर पी क्यू से टच नहीं है। ए बी वायर और पी क्यू दोनों वायर एक दूसरे से टच नहीं है, इस तरीके से बनाया है तो। ठीक है, और इस तरीके से बनाया है तो इसका मतलब दोनों वायर एक दूसरे से टच हैं, जुड़े हुए हैं। और इस तरीके से बनाया है तो दोनों वायर एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वायर जॉइंट की बात हो गई। और भी है, ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे सर्किट डायग्राम समझने के लिए। ठीक है, और देख लेते हैं। चलिए, बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसको सर्किट डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके का सिंबल बना दिया तो वो बल्ब का सिंबल है। या फिर बल्ब बना दो, या फिर ऐसे भी बनाते हैं, बल्ब आपने ड्रॉ करके बना दिया, या फिर ऐसे बनाया और फिर यहाँ गोला खींच दिया, तो ये भी एक बल्ब का सिंबल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हैं इसे, ये सिंबल हैं बल्ब के। और है एक रजिस्टर। रजिस्टर अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रजिस्टर क्या होता है, जिसे हम रेजिस्टेंस नाम से भी जानते हैं, जिसे हम रेजिस्टेंस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल कैपिटल आर है। और इसको हम इस तरीके से बनाते हैं सर्किट डायग्राम में। इस तरीके से आपको सर्किट डायग्राम में कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्रेकर जैसा जिगजैग, तो ये रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए, और एक होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट, जिसका दूसरा नाम है बेटा, रियोस्टेट को और दूसरे नाम से जानते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो बदलता रहता है, क्या? रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। ठीक है, और इसको सिंबल हम जो देते हैं RH, और इसको बनाते कैसे हैं? ऐसे बनाया और इसमें एरो लगा दो तो ये वेरिएबल रजिस्टर कहलाता है। ठीक है, या तो ऐसे बना दो, या फिर एक और तरीका है इसको बनाने का, ऐसे बना हुआ हो, ठीक है, और उस पर इस तरीके से एरो आ रहा हो, तो ये भी रियोस्टेट या वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है। ध्यान रखना है ये आपको सिंबल सब। ठीक है, अब एक रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, एक होता है एमीटर। एमीटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं एमीटर को। ठीक है, और एमीटर को सर्किट में इस तरीके से ए लिख दिया, किसके अंदर? सर्किल के अंदर। एक तरफ नेगेटिव होता है, एक तरफ पॉजिटिव। ये एमीटर का रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट मीटर,
वोल्ट मीटर V से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। यदि V लिखा हुआ है तो वो वोल्ट मीटर होगा, ठीक है। यदि V लिखा हुआ है तो वो वोल्ट मीटर होगा। तो ये सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये कुछ कॉमनली यूज्ड सिंबल्स हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के लिए। ये जितने भी मैंने कंपोनेंट्स बनाए हैं ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ कि वन बाई वन। सेल तो आपने सुना है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो ऊर्जा प्रदान करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले वायर यूज किया था और वायर से क्या जोड़ दिया था बेटा? एक सेल जोड़ दिया था। ये देखिए, इस वायर के अक्रॉस हमने ये सेल जोड़ दिया, तो वायर के दोनों सिरों के बीच इसने पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दिया। तो ये जो बैटरी है बेटा, ये जो सेल है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहलाता है, क्योंकि ये एनर्जी दे रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को। किसके लिए? मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो जो बिजली विभाग को हम बिजली का बिल पे करते हैं, वो किसके लिए पे करते हैं? करंट के लिए नहीं करते। करंट तो वायर में इलेक्ट्रॉन्स, जो जितने भी वायर आप अपनी इलेक्ट्रिकल फिटिंग में घर में लगवाओगे, उन सभी वायर्स में जो कि मेटल के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल होते ही हैं। अब उनको हमें एक निश्चित दिशा में फ्लो करवाना है, तो उसके लिए हमें उन वायर्स के दोनों एंड्स के बीच हमें क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना पड़ेगा। और उसके लिए उस वायर को किसी सोर्स ऑफ एनर्जी यानी बैटरी और सेल से जोड़ना पड़ेगा। तो एनर्जी कौन देता है हमें? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसके लिए हम बिल देते हैं। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। और ऐसे ही बैटरी भी क्या हो गया भाई? ये सेल मतलब सिंगल सेल, और बैटरी में तो बहुत सारे सेल जुड़े रहते हैं, तो ये और ज्यादा दमदार हो जाएगा, सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि जितने ज्यादा आप पोटेंशियल डेवलप करना चाहते हैं उतने सेल सीरीज में जोड़ दो। और स्विच तो ये ऑन ऑफ करने के लिए होता है। इस कंडीशन में सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं होगा। ऑफ कंडीशन कहलाती है, स्विच ऑफ कहलाता है ये। ओपन स्विच को कहो, ओपन कहो या ऑफ कहो, ठीक है। ऑफ कहलाता है। जैसे पंखे का स्विच, आपने घर में पंखे का स्विच है, उसको बंद कर रखा है, तो वो ओपन स्विच कहलाया। और जैसे क्लोज्ड स्विच है तो इस तरीके से। और जैसे क्लोज स्विच का मतलब ऑन कंडीशन से होता है। क्लोज्ड का मतलब ऑन कंडीशन और ओपन का मतलब ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो क्लोज्ड का मतलब ऑन कंडीशन इस केस में, यानी करंट फ्लो होगा। अब दो वायर हैं, वायर किसके लिए यूज करते हैं? वायर तो चार्ज के फ्लो के लिए। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों आपस में टच नहीं है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा बल्ब मैंने बता दिया, ये भी एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, उजाला देता है जी। ये इसका फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बना होता है। ये फिलामेंट होता है जो कि जलता है, रोशनी देता है। रेजिस्टेंस और रजिस्टर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिंबल से पता कर लो आप। देखो जिगजैग है, यानी जैसे ब्रेकर आता है सड़क में, जब ब्रेकर आता है सड़क में तो व्हीकल का स्पीड हमें कम करना पड़ता है। एक तो प्लेन रोड है, उस पर हम दौड़ लगा रहे हैं तो ज़्यादा तेजी से दौड़ पाएंगे। और एक उबड़ खाबड़ रोड है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे गड्ढे भी हैं बीच बीच में, तो हमें जगह जगह अपनी रनिंग स्पीड बदलनी पड़ेगी। वैसे ही व्हीकल की स्पीड भी हमें बदलनी पड़ेगी। यानी व्हीकल को मूव करने में या हमें दौड़ने में क्या पैदा कर रहा है? ये रेजिस्टेंस, बाधा पैदा कर रहा है। तो वैसे ही वायर में चार्ज के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा पैदा करता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा किया जा सकता है इसकी हेल्प से। जब रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर देंगे तो सर्किट में करंट कंट्रोल हो जाएगा। तो इस रियोस्टेट को हम करंट कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं, ध्यान रखना, करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या कर देते हैं? रेजिस्टेंस को बदल देते हैं। रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट बदल जाएगा। एमीटर क्या होता है बेटा? देखो जरा, एमीटर में एक बॉक्स होता है। लैब में जब स्कूल आओगे तो लैब में दिखाऊंगा आपको। एक तरफ होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ होता है नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव है वो रेड कलर का होता है, जो नेगेटिव है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और ऊपर लगा रहता है एक शीशा, ठीक है। और शीशे के अंदर बना रहता है एक स्केल, कागज पर एक स्केल बना रहता है। इस तरीके से कागज पर एक स्केल बना रहता है। इस तरीके से कागज पे स्केल बना रहता है बेटा, ठीक है। स्केल बना रहता है इस कागज पे, इस तरीके से एक स्केल बना रहता है, ठीक है। और यहाँ बीच में एक निडल जुड़ी रहती है, और वो निडल इस तरीके से कहीं भी पॉइंट हो सकती है, ठीक है। और यहाँ लिखा रहता है ए, तो ये एमीटर हो गया। क्या हो गया? एमीटर। ये 0.0 होता है, यहाँ लिखा होता है 1 2 3 4 5
6, लास्ट में कितना लिखा हुआ है 6, यानी मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है 6 एम्पियर। कितना 6 एम्पियर। तो करंट जो मैक्सिमम ये मेजर कर रहा है 6 एम्पियर, इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ एमीटर। क्या कहते हैं? रेंज ऑफ एमीटर। यानी आपका एमीटर इस रेंज का है जी, ठीक है, कि इतना करंट मेजर कर सकता है। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक मेजर कर सकता है? इसको मैं और एग्जैक्ट तरीके से लिखूं 0 to 6 एम्पियर, इतना ये रेंज हो गया। ठीक है, तो आई की वैल्यू हम क्या लेंगे? 0 तो लेते नहीं है, 6 एम्पियर लेंगे। फिर आई को हम क्या लिख देंगे? 6 एम्पियर लिख देंगे। ठीक है, रेंज ऑफ एमीटर कहलाता है। जो लास्ट में लिखा रहता है इसका मतलब इसकी कैपेसिटी इतना करंट मेजर करने की है। ऐसे ही वोल्ट मीटर में होता है बेटा, वोल्ट मीटर भी ऐसा ही होता है, इसी तरीके से बना होता है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो कि रेड कलर का होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, ऊपर एक शीशा होता है और यहाँ पर स्केल बना रहता है बेटा, यहाँ पर स्केल बना रहता है। यहाँ पर क्या बना रहता है? स्केल बना रहता है। ये स्केल बना रहता है, इस पर इस तरीके से स्केल बना रहता है। ठीक है, और यहाँ पर वही वैल्यूज लिखी रहती हैं 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके की वैल्यूज लिखी रहती है। और यहाँ बीच में निडल होती है बेटा, निडल होती है यहाँ पर, और यहाँ लिखा रहता है V। V का मतलब वोल्ट मीटर है ये। और इसकी रेंज क्या हो गई? लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 6। अब वोल्ट मीटर यानी पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूनिट हमने पढ़ा था ना, क्या होता है? वोल्ट। यानी ये जो वोल्ट मीटर है ये किस रेंज का है? 0 to 6 वोल्ट रेंज का है। किस रेंज का है? 0 to 6 वोल्ट इसकी रेंज हो गई, जिसको हम सिंपली 6 वोल्ट भी लिख देते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? रेंज। किसकी रेंज हो गई? रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो जो लास्ट में लिखा रहता है वो उसकी रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं। एमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं बेटा। एमीटर जो होता है, एमीटर को हम हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड। कौन? एमीटर। ये रेंज ऑफ एमीटर से मतलब नहीं है मेरा मतलब है एमीटर। एमीटर जो होता है, एमीटर, ये एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ा रहता है। किस में जुड़ा होता है? सीरीज में। सर्किट में जोड़ना है तो सीरीज में जोड़ेंगे। जबकि वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में कैसे जुड़ा रहता है? पैरेलल में जुड़ा रहता है। कनेक्टेड, ऑलवेज भी लिख दो, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमेशा किस में जुड़ता है? पैरेलल में जुड़ता है, ध्यान रखना। और एक और बात यहाँ पर बताऊं, एमीटर, एक पॉइंट तो ये हो गया, एमीटर कैसा होता है? दोनों में एक तरह से मैं डिफरेंस भी आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, एमीटर कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है एमीटर का। और जो आइडियल एमीटर होता है बेटा, आइडियल एमीटर, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस तो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। और जो वोल्ट मीटर है ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, ध्यान रखना है, ये तो आपको ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। और इस आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है, आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी लार्ज, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी लार्ज होता है, इन्फिनिटी। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं सर्किट में, एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। तो ये एक बात हो गई। मैंने आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बताए, उनके सिंबल्स बताए। एमीटर और वोल्ट मीटर में बेसिकली मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसके ऊपर प्रश्न आता है बेटा कई बार। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? ए सर्किट in which various electrical components are connected। एक सर्किट जिसमें डिफरेंट या अलग अलग तरीके के वेरियस
इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जुड़े रहते हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। जैसे मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना देता हूँ, मान लीजिए ये एक सेल है, एक सेल का यूज किया मैंने, ठीक है, और मैंने एक एमीटर जोड़ दिया इस सर्किट में, और एक मैंने बल्ब भी लगा दिया, एक बल्ब भी लगा दिया, ठीक है, और इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, और एक रियोस्टेट भी लगा दिया, ये लीजिए रियोस्टेट भी लगा दिया। तो ये क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हुआ बेटा। ये जैसे ही कंप्लीट होगा इसमें करंट फ्लो होगा इस तरीके से, ठीक है। ये कौन है? रियोस्टेट, RH वेरिएबल रजिस्टर। और ये कौन है? सेल, ठीक है। और करंट फ्लो हो जाएगा इसमें I। ये बल्ब है बेटा, ये बल्ब है, ठीक है। और ये कौन है? एमीटर। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें हमने एक एमीटर, एक बल्ब, एक सेल और रियोस्टेट को जोड़ा है। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझाता हूं इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्राइजिंग, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ कीजिए जिसमें क्या क्या हो। कंप्राइजिंग मतलब जिसमें क्या क्या जुड़ा हो। कंप्राइजिंग ए बैटरी ऑफ 2 cells, ए बैटरी ऑफ 2 cells, ए क्लोज्ड स्विच जिसे आप वन वे की भी कहते हो, वन वे की, ठीक है। और क्या जुड़ा हो? एन एमीटर, एक एमीटर जुड़ा हो, एंड ए बल्ब, और एक बल्ब जुड़ा हो। अब ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको ड्रॉ करना है, तो बड़ा आसान सा है। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करना है बेटा। ड्रॉ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्राइजिंग ए बैटरी, जिसमें बैटरी हो, कितने सेल्स की बैटरी हो? 2 cells की। और क्या हो? एक क्लोज स्विच हो, और क्या हो? एक एमीटर हो, और एक क्या हो? बल्ब हो। तो कितने कंपोनेंट जुड़े होने चाहिए? एक तो बैटरी, एक स्विच 2, एमीटर 3 और बल्ब 4 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जोड़ने हैं। तो बना दीजिए। तो सबसे पहले तो बैटरी बनाओ। कितने सेल की बैटरी बोल रहा है? 2 cells की। ये लीजिए एक सेल, और ये लीजिए 2 सेल। ये 2 सेल की मैंने बैटरी ये बना दी, ये 2 सेल की बैटरी बना दी, ठीक है बेटा। ये बैटरी हो गई, बैटरी ऑफ 2 cells, ठीक है। और ये हो गया इसका पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव। ये बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब एक लगा दो यहाँ पर। क्या कह रहा है? ये बैटरी ऑफ 2 cells हो गई। एक क्लोज स्विच, क्लोज स्विच यहाँ लगा देता हूँ मैं। ये क्लोज्ड है इसलिए ये क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच लगा दिया, ठीक है। और क्या लगाना है? एन एमीटर। क्या लगाना है? एक एमीटर। और एमीटर हमेशा कैसे जुड़ता है सर्किट में बेटा? ध्यान करो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने। एमीटर को हम हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? सीरीज में। तो ये मैंने सीरीज में एक एमीटर भी जोड़ दिया। ये क्या जोड़ दिया? एमीटर, ठीक है। एमीटर का एक एंड इधर है और दूसरा एंड इधर। और क्या है जुड़ा हुआ है? एक बल्ब। तो एक बल्ब भी जोड़ दो, ये लो, एक ये बल्ब जोड़ दिया मैंने, ये बल्ब जोड़ दिया। तो ये हो गया बल्ब, ये हो गया एमीटर, ये हो गई बैटरी। ये स्विच क्लोज है। जब स्विच क्लोज होगा तो सर्किट में क्या फ्लो होगा? करंट, और बल्ब जल जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा? जलने लगेगा, ठीक है। तो ये बन गया इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब चलिए एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, उसके जरिए समझाता हूँ कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करते हैं। कहता हूँ कि ड्रॉ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट consisting a battery of 3 cells, a voltmeter,
a resistor, a voltmeter, a resistor, or an ammeter, a rheostat and a bulb. चलो बल्ब रहने दो, इतना ही बताओ। ये है मान लीजिए। तो इससे मुझे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, तो बनाऊं। सबसे पहले बैटरी को बनाओ, बैटरी ऑफ 3 सेल्स। क्या क्या जोड़ना है, देखो बैटरी ऑफ 3 सेल्स जोड़ना है, एक वोल्टमीटर जोड़ना है, एक रजिस्टर जोड़ना है, एक एमीटर जोड़ना है, रियोस्टेट जोड़ना है। बैटरी ऑफ 3 सेल, ठीक है। वोल्टमीटर कैसे जुड़ता है सर्किट में, पैरेलल में, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस है ये रजिस्टर। एमीटर सीरीज में जुड़ता है। रियोस्टेट करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो सबसे पहले बैटरी बनाओ 3 सेल की। तो 3 सेल की बैटरी, 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल, ये 3 सेल की एक बैटरी हो गई। अब इस पे डॉटेड बॉक्स बनाओ या मत बनाओ, बैटरी है ये, अंडरस्टूड है। बैटरी ऑफ 3 सेल्स, कितने सेल्स की बैटरी हो गई है, 3 सेल्स की बैटरी हो गई, ठीक है। अच्छा, एक प्लग, ए क्लोज्ड स्विच और लिख लो इसमें, एक क्लोज्ड स्विच भी लगा दो। तो बैटरी लगा दी मैंने, बैटरी के बाद में ये क्लोज स्विच लगा दिया, ये लो। और रियोस्टेट लगाना है, ये रियोस्टेट भी लगा दिया। अब रियोस्टेट का जो एरो है ना, उसका ध्यान रखना, हमेशा करंट कैसे जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये एरो यूं आना चाहिए, ये एरो यूं आना चाहिए। कहीं आप ऊपर की तरफ एरो बना के और उसके ऊपर, रियोस्टेट को बनाने का तरीका आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब सेंस सही आना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में ही एरो बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो बैटरी 3 सेल की जोड़ दी, रियोस्टेट जोड़ दिया और क्लोज स्विच जोड़ दिया। ये क्लोज्ड स्विच और ये क्या है बेटा, रियोस्टेट, ठीक है। और क्या जोड़ना है, वोल्टमीटर। और क्या जोड़ना है, एमीटर। एमीटर तो आप जानते हो सीरीज में जुड़ता है। एमीटर किस में जुड़ता है, सीरीज में। तो ये लो एमीटर, तो मैं सीरीज में जोड़ देता हूँ, ये जुड़ गया एमीटर, ठीक है। एक वोल्टमीटर पैरेलल में जुड़ता है। अब किसके पैरेलल जुड़ेगा, रजिस्टर के पैरेलल जोड़ देंगे। ये रजिस्टर लगा देता हूँ और ये लीजिए, ये रजिस्टर है, आर रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। और ये कौन है, एमीटर। और इस रजिस्टर के पैरेलल में जोड़ देता हूँ वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर को जोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। रजिस्टर के पैरेलल जुड़ेगा कौन, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ता है। अब इसमें स्विच क्लोज है तो करंट ऐसे फ्लो होगा। अब देखिए, ये रियोस्टेट ऐसे ही एरो आना चाहिए, तो करंट फ्लो हो जाएगा इसमें। ये बन गया इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो कंपोनेंट हमें दिए हुए थे उनके आधार पर हमने ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बना दिया, ठीक है। तो आज मैंने आपको इस लेक्चर में क्या क्या बताया, इस लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को रिवाइज किया। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को रिवाइज करने के बाद में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे डेवलप होता है सर्किट के अंदर, इसके बारे में बात बताई। इलेक्ट्रिक करंट कैसे डेवलप होता है वो मैंने आपको बताया बैटरी से जोड़ करके, क्योंकि उससे पहले तो जिगजैग डायरेक्शन था। और जिगजैग डायरेक्शन क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम था। इन दोनों सिरों पर जो पोटेंशियल था, लिख भी लेना यहाँ पर, पोटेंशियल सेम था, सेम पोटेंशियल था। तो अब ये चार्जेज जो है मूव नहीं करेंगे। जिगजैग तो जो मूव कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, ये तो केवल सराउंडिंग की हीट के कारण मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक निश्चित दिशा में इनको यदि फ्लो करवाना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो बैटरी यानी सोर्स ऑफ एनर्जी जोड़ा, ठीक है, जिसने इसके इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाया और इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल एंड की तरफ खींच लिया। भूल भी जाओ इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देखिए नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैंने 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताई आपको कि यदि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। और 1 एम्पियर का बाद में मैंने आपको और भी यूनिट्स बताई कि 1 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर,
1 माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻⁻3 एम्पियर, नैनो मतलब -9 एम्पियर। फिर मैंने आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स के सिंबल बताए, ठीक है। ये सारे सिंबल्स आपको याद रखने हैं, इनको याद रखना पड़ेगा आपको सिंबल्स को, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपको सिंबल्स बताने के बाद में एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच का अंतर बताया, इनका यूज बताया। और उसके बाद में फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बताया, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है और कैसे ड्रॉ किया जाता है। 2 क्वेश्चन के जरिए मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।